آقائے دو جہاں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن کراچی سے خیبر تک قریہ قریہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں سے جھومنے لگا۔ عید میلاد النبی اور یوم دفاع کی مناسبت سے وفاق اور صوبوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوسوں کا اہتمام، بڑوں کے ساتھ بچوں کی بھی بھرپور شرکت۔ سبز و سفید لباس پہنے اور سر پر ٹوپیاں سجائے خوشیاں منانے میں مصروف۔ بچوں نے کہیں پہاڑیاں سجائیں تو کہیں گنبد خضرا کے ماڈل سج گئے۔ شہر شہر گلی گلی چپا چپا رنگ و نور سے جگمگا اٹھا۔ مساجد، عمارت و بازاروں میں چراغاں، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر۔ اسلام آباد میں 50ویں عالمی سیرت النبی کانفرنس، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، علماء کرام، غیر ملکی سفیروں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور دیگر شرکاء نے خطاب میں کہا، سیرت طیبہ ہر دور میں ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ ہمیں اسوہ حسنہ اپنا کر تعصب، فرقہ واریت اور نفرت کی ہر شکل کو ختم کرنا ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم اور مسلم امہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک کامل اور ہمہ جہت اسوہ ہے۔ آج کا دن اپنی زندگیوں کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے عہد کا دن ہے۔ دفاع وطن کی خاطر بہادری کی لازوال داستان رقم کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ 60واں یوم دفاع و شہداء ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ عوام کا فوج پاکستان سے لازوال محبت کا اظہار۔ دن کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی۔ پاک فضائیہ کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان نے قائد کی مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ خطاب میں کہا کہ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی امیدوں پر پورا اتری۔ بنیانم مرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کر دی۔ ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں۔ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں ہوگا، 60-0 تک جا سکتا ہے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر اور ڈی جی رینجرز کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ ادھر لاہور میں مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض پاک فوج کے سپرد۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ ملک بھر میں یادگار شہداء پر تقاریب، شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو راولپنڈی میں یادگار شہداء پر تقریب، چیف آف جنرل سٹاف نے پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ راولپنڈی گیریزن، ملتان گیریزن اور کھاریاں گیریزن میں بھی تقاریب، پاک فوج کے اعلیٰ حکام نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پشاور میں کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی، شہداء کے اہل خانہ اور عوام کی بھرپور شرکت۔ کوئٹہ میں گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی یادگار شہداء پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ یوم دفاع پر ٹریفک پولیس لاہور کا بھی اپنے قومی ہیروز کو سلام۔ سی ٹی ڈی کی میجر عزیز بھٹی شہید کی جائے شہادت پر آمد، فاتحہ خوانی کی۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی شہداء کے مزاروں پر فاتحہ خوانی، پھولوں کی چادریں چڑھانے کا سلسلہ جاری۔ ستمبر 1965 عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن۔ پاک افواج نے جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان کا یوم دفاع پر شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیفز کا شہداء اور غازیوں کو سلام۔ مسلح افواج پاکستان بھر میں جاری سیلاب کے باعث یوم دفاع اور شہداء انتہائی سادگی کے ساتھ منا رہی ہیں۔ یوم دفاع کی مناسبت سے اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ کی۔ نیول چیف نے شہداء کی اہل خانہ کو پھول بھی پیش کیے۔
चविंडा का महाज भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान। दुश्मन ने लाहौर के महाज से तवज्जो हटाने के लिए रात की तारीकी में चविंडा पर हमला किया। अहलियाने सियालकोट अपनी फौज के शाना बशाना लड़े और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारतीय फौज के 600 टैंकों, 400 तोपों और 1 लाख के लश्कर के साथ हमला किया। दूसरी जंग अजीम के बाद ये टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई करार पाई। बहादुर जवानों ने जिस्म से बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के पड़खच्चे उड़ाए। बुज़दिल दुश्मन अपने 40 टैंक छोड़ के दुम दबाकर भाग निकला। BRB नहर पर मेजर अजीज भट्टी ने शुजाअत और बहादुरी की अजीम दास्तान रकम की। मुल्की दिफा मजबूत से मजबूत तर यौम दिफा शहदा पर 92 न्यूज़ का शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर स्पेशल वर्चुअल रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़म का दिन। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का यौम दिफा पर पैगाम। सदर ने कहा, हमारी फ़ौज बहरी और फ़ज़ाइया ने बेमिसाल पेशावराना महारत का मुज़ाहिरा किया। हम भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और बदलते इलाकाई तनाजुर की हकीकत से गाफिल नहीं रह सकते। हम अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत और जदीद बनाते रहेंगे। शहबाज शरीफ बोले, 1965 की कुर्बानियों का जज्बा एक लाजवाल रोशनी है जो हमारी आइंदा नस्लों को हर आजमाइश और चैलेंज में रहनुमाई फराहम करता है। कोई भी चैलेंज हमें खुददारी और खुद मुख्तारी के रास्ते से मुनहरिफ नहीं कर सकता। कौमी दिफा मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। यौम दिफा और शहदा के मौके पर ISPR का नया मिली नगमा अल्लाहू जारी। गुलकार साहिर अली बगा की आवाज़ में रिकॉर्ड नगमे में पाक फ़ौज की बहादुरी, कुर्बानी और कौम के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया। यौम दिफा पर ISPR ने नई दस्तावेजी फिल्म भी जारी कर दी। सैलाबी पानी उतरा नहीं कि आसमान से मजीद बरस पड़ा। मानसून का 10वां स्पेल। मुल्तान, मियां चन्नू और मुल्हिका इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां भी जारी। सतलुज, रावी और चनाब के पानी से मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। अहमदपुर शर्किया के कई इलाके डूब चुके। रहीम यार खान के 34 देहात शदीद मुतासिर। अलीपुर में भी दरिया चनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासिर। हैट्रीमू पर नए सैलाबी रैली का अलर्ट जारी। मुल्तान में शेरशाह बंद पर पुश्ते बुलंद करने का अमल जारी। सतलुज में इलाहाबाद के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 रिकॉर्ड। चूनिया के 36 गांव पानी की लपेट में हैं। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज पर फलादपुर का बंद टूट गया। दर्जनों घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। कसूर में सैलाब के बायस कच्चे मकानात गिर गए। खुले आसमान तले बैठे मुतासिरीन के पास राशन खत्म। पानी से हर तरफ मसाइल बढ़ गए। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का ज़मीनी और फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान का सियालकोट का दौरा। रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स भी मुतासिरीन के लिए सहूलियात का जायजा लिया। उधर पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान झंग पहुंचा दिया गया। सामान पानी में फंसे मकीनों में तकसीम किया जाएगा। अमरीका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान लेकर पहली परवाज़ पाकिस्तान के लिए पहुंच चुकी है। इमदादी सामान लेकर पहुंच चुके हैं। सामान में टेंट्स हैं, डी वाटरिंग पंप्स हैं और जनरेटर्स भी शामिल हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का सैलाब से नुकसानात पर दुख का इजहार। नेटली बेकर की क़यादत में अमरीकी वफ़द का NDMA सेंटर का दौरा। मुशावरती इजलास में कुदरती आफात के तदारुक पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन NDMA ने इदारे के दायरा-ए-कार और निज़ाम पर ब्रीफिंग दी है। जिन्नी भी मेरी फसल सी सारी तबाह हो गई। मेरे जानवर रोड गए ने, बाकी तो मैं लैके बन ते बैठी हुई हाँ। मैनू अज 8 दिन हो गए, मैनू किसी ने नहीं आन के पूछा है तेरी असी को मदद कर गए, तेन कुछ है चाहिए या नहीं चाहिए, दसो मैं किधर जावा, साड़ी मदद होनी चाहिए। घरों बेकार है सारे लोग जो उत्ते आके बंद उत्ते आके बैठे।
ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ बढ़ਦੀ ਪਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। बनो आवाज़ करो आगाज़, मुश्किल घड़ी में 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के संग। अगर आप मुश्किल में हैं, हुकूमती मशीनरी या इमदाद नहीं पहुंच रही, मोबाइल उठाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दें 92 न्यूज़ को। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। आपका पैगाम आला हुकाम तक पहुंचाएगा 92 न्यूज़ नेटवर्क। गवर्नर सिंह कामरान डिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। बोले, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ। दुश्मन लाख बुरा चाहें मगर अल्लाह की मदद और नुसरत से पाक फौज को हमेशा कामयाबी मिली। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौजूदा हालात में उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शिरकत। गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम सब के लिए मशअल राह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैगाम में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने बनी नौ इंसानियत को अंधेरों से उजाले तक पहुंचा दिया। आपकी तालीमात पर अमल पैरा होने में ही कामयाबी है। ईद मिलादुन्नबी आई, लब पर खुशियों का तराना आ गया। कोयटा में शमअ रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों का वालिहाना इजहार अकीदत। मुल्तान में ऊँटों का जुलूस तवज्जो का मरकज़। फैसलाबाद और मीरपुर खास में 100 से ज़ायद ट्रैक्टर्स की रैली। ननकाना साहिब में सिख कम्युनिटी भी मुसलमानों की खुशियों में शरीक। जुलूस के शुरका पर गुलपाशी, रावलपिंडी, टांग, चिश्तिया, रेनाला खुर्द, हरीपुर में रैलियाँ। सखर में मेयर अरसलान शेख की क़यादत में जुलूस निकाला गया। सहवन और सखर में दराए सिंध में कश्ती रैलियाँ निकाली गई। स्कर्दू में ईद मिलादुन्नबी और यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब। शुरका का दिफा वतन के लिए अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर में भी मिलादुन्नबी के जुलूस निकाले गए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहीं केक काट कर तो कहीं नजरों न्याज तकसीम करके खुशी का इजहार। लाहौर, सियालकोट, मुल्तान समेत कई शहरों में केक काटे गए। फूलनगर में 350 पाउंड का केक काटा गया। गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहरियों के लिए पराठे, पठूरे, बिरयानी, दलीम, हलवा और दीगर लवाजमात से शहरियों की तवाज़ु। खीर, जलेबी, कश्मीरी चाय, दूध और जोश की सभी ने। मुल्तान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने 200 मन खीर तैयार की। इजराइल के गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। शहर की बड़ी रिहायशी इमारत मस्ता टावर में राख का ढेर बना दी गई। 24 घंटों में 69 फलस्तीनी शहीद, 422 जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज़ कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हुए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 376 हो चुकी। इजरायली वज़ीर दिफ़ा का नस्ल कुशी का एतराफ़। कहा कि गाज़ा में जहन्नुम के दरवाजे खुल रहे हैं। मज़ीद बुलंद व बाला इमारतों को भी निशाना बनाएंगे। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। सदर ट्रंप का 10 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको भेजने का ऐलान। ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि वेनेजुएला के सदर मुनशियात के कार्टेल की क़यादत करते हैं। सदर माडुरो ने इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा, अमरीका वेनेजुएला का तेल चोरी करना चाहता है। 3 रोज़ कबल अमरीका ने वेनेजुएला की कश्ती भी मिसाइल के जरिए तबाह की थी।